Hello everyone, welcome to English Treasures. So today we're gonna talk about a very beautiful topic, that is advanced vocabulary. I know that you feel that why should we do a vocabulary that is very boring, हम उसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं. But why to boresome yourself and the audience with the vocabulary you have? That sounds very boresome. If you want to upgrade yourself and when you are preparing yourself for the competitive exams and you are communicating to the person who has such a very advanced level of communication skills, then you feel a little bit shyness and you negotiate yourself in front of other because of that boresome vocabulary. So why move on to the next. Today we're gonna talk about the beautiful words that use in the daily life. You just talk about the newspaper, you just talk with some metro cities people. So these sort of things come into our day-to-day lives that these would use, but I don't know the meaning. So we're gonna Google out. So no need to Google out. Today we're gonna talk about that words only, so that use in our daily life. So we're gonna how to retain the vocabulary. That is very important. So we're gonna do it in a very funny way. We're gonna learn it in a funny idea with lot of examples and use it just now in the routine, like a routine way. So it's gonna help you to retain it. Just a moment. So move on to the number. Word is pacify, meaning make somebody calm who is very upset. कोई बहुत ज़्यादा अपसेट है आपके एटीट्यूड के साथ, आपके बिहेवियर के साथ, कोई वैसे भी परेशान है, उसको उसी वक्त काम कर देना है. ही इज़ वेरी अपसेट. तो रादर देन दैट थिंग आई जस्ट स्पेसिफाई हिम. ही इज़ वेरी अपसेट विद द बिहेवियर ऑफ हिज बॉस. वो बहुत ही ज़्यादा अपने बॉस के बिहेवियर से अपसेट था. सो आई वेंट देयर एंड आई स्पेसिफाई हिम. मैंने उसको पहले काम करा. काम किस जगह, इंस्टेड ऑफ सेइंग काम, आई जस्ट स्पेसिफाई हर, आई जस्ट स्पेसिफाई हिम. It was difficult for the police to pacify the angry crowd. पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा, पुलिस के लिए, cops के लिए बहुत ही difficult हो चुका था to calm down the public. Instead of saying calm down, you can use the word pacify. I just pacify her with a beautiful bouquet of roses. मैंने उसको बहुत ही काम करा. किस तरह से? By giving her beautiful presents. So you can use this word in a number of ways. Now you prepare an example in your mind and tell me in the comment box. So the next one is auspicious. Auspicious suggest a positive and successful future. जब हम किसी को पॉजिटिव सजेशन देते हैं या किसी को गुड लक करते हैं सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए, ऑस्पीशियस उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑस्पीशियस बन जाता है. ऑस्पीशियस ओकेजन भी बोला जाता है. विनिंग फर्स्ट 7 केसेस वॉज एन ऑस्पीशियस बिगनिंग. ठीक है, फॉर द यंग लॉयर्स. उन्होंने 7 केस जीत लिए, तो ये क्या हुआ उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा गुड लक की तरह हुआ है ना. सजेस्ट पॉजिटिव. जब हम किसी को पॉजिटिव या सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए कहते हैं तो यूज़ द वर्ड ऑस्पीशियस. द नेक्स्ट वन इज, इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, सो लेट प्रैक्टिस इट आउट. द वर्ड इज शेनानिगन्स. शैनिगन्स नहीं है ये, शेनानिगन्स. शेनानिगन्स मीनिंग क्या हुआ? डिसऑनेस्ट एक्टिविटी दैट पीपल फाइंड इंटरेस्टिंग. मीन्स आजकल लोग जो है ना, वो सोचते हैं कि गलत तरीके से बिजनेस करा जा सकता है या गलत काम करने से आप पैसा बना सकते हो. सो डिसऑनेस्ट एक्टिविटी दैट पीपल फाइंड इज इंटरेस्टिंग. आप किसी गलत काम को आप ये सोचते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही अच्छा है या यही एक तरीका है पैसे कमाने का, दैट इज़ कॉल्ड टू बी शेनानिगन्स. दैट पीपल, स्पेशली दैट पीपल इज कॉल्ड टू बी शेनानिगन्स. Most business shenanigans were exposed in the newspaper today. बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स हम बोलते हैं, तो बिजनेस टाइकून्स जो बिजनेस में कुछ घपला करते हैं, दे आर कॉल्ड टू बी shenanigans. So most business shenanigans were exposed in the newspaper today. I don't believe in the people who are, shenanigans are the people who believe इन द फॉल्सहुड, जो गलत चीज़ों में विश्वास कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड टू बी शेनानिगन्स. द नेक्स्ट वन इज इमैक्युलेट. पूरा नीट एंड टाइडी, परफेक्टली क्लीन. यूज द वर्ड इमैक्युलेट. परफेक्टली क्लीन. माई आंट्स हेल्प हर, माई आंट्स
कीप्स हर किचन इमेक्यूलेट। जो मेरी आंट की किचन है वो हर वक्त क्लीन और टाइडी होती है, दैट इज़ वेरी इमेक्यूलेट rather than using neat and tidy, that is, you know, she loves to keep her room very immaculate। उसको अपना रूम जो है बिल्कुल परफेक्ट पसंद है, बहुत ही इमेक्यूलेट पसंद है। तो नीट एंड टाइडी की जगह यू कैन यूज द वर्ड इमेक्यूलेट। सो द नेक्स्ट important word is 86। टू इजेक्ट समवन फ्रॉम ए प्लेस, किसी को किसी भी जगह से, ओहदे से हटा देना, निकाल देना, दैट इज़ 86। yeah, that is a number that sounds very, you know, interesting कि 86 is a phrase, is a vocabulary word। he was 86th from the restaurant, उसको रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया। he was 86th। he overdrank and creating a scene, so he was 86th from the bar, उसको बार से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा he was you know dipped, so मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर चुका था एंड ही वॉज क्रिएटिंग सच अ सीन, सो ही वॉज 86th फ्रॉम देयर। तो किसी को किसी जगह से निकाल देना, दैट इज 86। किथ एंड किन, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को क्या बोला जाता है? किथ एंड किन। दे आर माई रिलेटिव्स, नो, दे आर माई किथ एंड किन। ठीक है, दे इन्वाइटेड ऑल देयर किथ एंड किन टू देयर न्यू होम। उन्हें अपने सभी न्यू हाउस में, न्यू होम में सभी अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बुलाया। दे इन्वाइटेड ऑल देयर किथ एंड किन टू देयर न्यू home। So friends and relatives can be replaced as a kith and kin, to whom you love to invite at your whatever job in your business, to whom you want to throw the party, ठीक है, for getting a new job, for getting starting for new startups। ठीक है, तो आप अपने किथ एंड किन, कौन से किथ एंड किन्स को बुलाना चाहोगे? सो यू नीड टू टेल मी एंड यू मेक एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ this vocabulary word, kith and kin। So the next one is, next vocabulary word, the next word is skint। having no money, if you are feeling a lack of money at the end of the month, that means skint। you know, you are saying I have no money at the end of the month and you are saying skint, that sounds very different। so having no money, अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो that is called skint। Quite often she find herself skint at the end of the month। वो अपने आप को कैसा फील करती है? skint at the end of every month, because उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो having no money, that means skint। you having no money, you have skint, you are skint। the next one is bump someone out। bump someone out means to make someone feel sad, किसी को उदास कर देना, बुरा फील कराना। ठीक है, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से या अपने बोलने से, दैट मीन्स बम्प समवन आउट। फॉर एग्जाम्पल, दैट कमेंट जस्ट बम्प मी आउट। दैट कमेंट, दैट पर्टिकुलर कमेंट पास बाय हर बम्प मी आउट, उसने मुझे सैड कर दिया, मुझे उदास कर दिया। लोग ज़्यादातर हम कर क्या रहे हैं, किसी और की बात को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कर लेते हैं, दैट वुड बी bump someone out। so you need not do that, you have to prepare examples with these words so you can memorize it, or there is no फालतू का टाइम आपके पास बच जाएगा इन सब बातों को सोचने के लिए। सो गेट ब्यूटिफुल एंड डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर माइंड दैट रोटेट्स एंड दैट kept you busy all the time। so the next word is wondrous। wondrous, yeah, need a lot of effort or difficult to be। अब आपने कहा learning English is a wondrous for me, no, it is so easy because you are learning it। wondrous need a lot of effort, आपको बहुत effort करना पड़ रहा है। इसमें तो effort करना ही नहीं पड़ रहा, ये तो सिर्फ सुनना पड़ रहा है and you have to practice it out। और difficult to do, कोई काम करने में बहुत मुश्किल लगे। for example, she found the duty of motherhood is wondrous। उसको मदरहुड की ड्यूटीज़ बहुत ही ज़्यादा वनरस लगी, डिफ़िकल्ट टू डू लगी। ये होता है न्यू मॉम्स के साथ, मेरे साथ भी हो चुका है। व्हेन आई बिकम अ मॉम, सो इट वाज वनरस फॉर मी हाउ टू हैंडल माय बेबी। समझ नहीं आ रहा उसको कैसे हैंडल आउट करना, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो रही हैं। सो दैट मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट टू डू समथिंग रादर देन यूजिंग दैट, इट्स वनरस फॉर मी। फॉर हैंडलिंग अ बेबी इज़ वनरस फॉर मी, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, डिफ़िकल्ट टू डू, नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट मीन्स wondrous, the task is wondrous for you। the next one is impromptu।
इट्स नॉट इम्प्रॉम्प्टू, यू आता है लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं होता, दैट मीन्स इम्प्रॉम्प्ट, डन और सेंट विदाउट अर्लियर प्लानिंग और प्रेपरेशन। कोई भी टास्क, कोई भी काम आप बिना प्रेपरेशन के कर लेते हो, दैट इज इम्प्रॉम्प्ट। आपने कोई स्पीच दी एट अ मोमेंट, दैट इज़ इम्प्रॉम्प्ट। इम्प्रॉम्प्ट मीन्स आपने इसकी प्रेपरेशंस नहीं करी है, कोई इसकी प्लानिंग नहीं करी है, कुछ भी आप ऐसा टास्क करते हो विदाउट प्लानिंग, डन और सेड करना, और सेड बताना विदाउट अर्लियर प्लानिंग और प्रेपरेशन, दैट इज़ इम्प्रॉम्प्ट। He made an impromptu speech about honor and responsibility. उसने उसी वक्त ही मेड एन impromptu speech of honor and responsibility, मीन्स उसने विदाउट अर्लियर प्लानिंग के प्रेपरेशन के वो स्पीच दी, दैट इज अ impromptu speech. So move on to the next vocabulary word is ascetic. When you live your life on the disciplines, on the principle of yours, the word we use here is ascetic. For example, living a simple life because of religious reason. आप अपने religious reasons के कारण एक simple life follow करते हो. You don't follow the life of the Western culture, or you keep on your culture. You use the word ascetic. He lives a very ascetic life. वो बहुत ही डिसिप्लिन पे अपनी लाइफ जीता. He lives a very ascetic life. तो अपने प्रिंसिपल्स पे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना, दैट इज कॉल्ड टू बी ascetic. The next word is rip off. Rip off means कोई आपको चीट कर लेता है, डिसीव कर लेता है कुछ पैसों के लिए, दैट इज कॉल्ड टू बी रिप्ड ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, मीनिंग टू चीट समवन बाय मेकिंग देम पे टू मच मनी फॉर समथिंग. अगर आपका कोई फ्रेंड आपको डिसीव करता है, आपसे ज़्यादा पैसे निकलवा देता है किसी चीज़ के लिए, दैट मीन्स रिप ऑफ. किसी ने आपको रिप ऑफ कर लिया है. Jones' ticket cost much less than ours. I think we have been ripped off. उसका चीज़ बहुत सस्ता मिला, हम लोगों का महंगा. Might be a we are ripped off. हम लोगों को चीट कर लिया गया. We are ripped off means कोई चीट कर लेना. To cheat someone or to deceive someone, that means rip off कर लेना किसी को. The next one is chicken out. चिकन आउट मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा डर जाए किसी भी सिचुएशन में, दैट इज़ कॉल्ड टू बी चिकन आउट. वो चिकन आउट हो गया, डर के भाग जाना. नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर फ्राइटेंड. कोई काम इसलिए ना करना क्योंकि आपको डर लगता है. यू आर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश बिकॉज यू आर चिकन हार्टेड. यू आर चिकन आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, नॉट गिविंग अ स्पीच बिकॉज ऑफ यू चिकन आउट फ्रॉम देयर. वी वर गोइंग टू बंजन जंपिंग. आपको पता हम बंजन जंपिंग करने गए, बट एलिस चिकन आउट एट द लास्ट मोमेंट, और वो वहाँ से भाग गया. डर के मारे भाग जाना किसी सिचुएशन से, दैट इज कॉल्ड टू बी चिकन आउट. चिकन आउट, नो टू डू समथिंग बिकॉज यू आर फ्राइटेड टू डू समथिंग, दैट इज मीन्स चिकन आउट. ना करना और डर के मारे भाग जाना, चिकन आउट. द नेक्स्ट वन इज क्रैश आउट. You know, after this lecture, what I gonna do, I gonna crash out. You can't believe, जब आप extremely tired हो जाओ और सोने चले जाओ, I'm going to crash out. अब तो मैं सोने जाऊँगा, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ. Actually from the last night I didn't have sleep because of my baby. He awake me all the night. So means crash out. आप बहुत ज़्यादा थक गए हो. To go to sleep very quickly because of tiredness. बहुत ही जाती बेड पे सो जाना. क्रैश आउट हो जाना बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड मीन्स क्रैश आउट. आई जस्ट वांना गो होम एंड क्रैश आउट. अब मुझे मन कर रहा है कि मैं घर पहुंच जाऊं और जाके क्रैश आउट हो जाऊं, सो जाऊं. द नेक्स्ट वन इज या दैट इज ऑल्सो फॉर द गाइज हु रियली वॉन्ट टू. These are for the especially for the males persons drop dead gorgeous, because होता है ना normally man's attract with the women, so you can say that man attract with the women, that how so beautiful she is, so beautiful she is called to be drop dead gorgeous. बहुत extremely beautiful है. You are looking extremely beautiful today, rather than saying drop dead gorgeous. You are drop dead gorgeous. extremely beautiful को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? drop dead gorgeous. तो जब भी आपने अपने विमेन को इम्प्रेस करना है, आपने विमेन को नहीं, अपनी वुमन को इम्प्रेस करना है, इफ़ यू जस्ट वांट टू इम्प्रेस अ गर्ल और एनी वन, यू कैन यूज दैट ड्रॉप डेड gorgeous. The next one is magnanimous. Magnanimous
means you're generous or kind, स्पेशली टुवर्ड्स अ कॉम्पिटिटर. जब आप अपने कॉम्पिटिटर के आगे बहुत ही ज़्यादा काइंड और जेनरस एक जेस्चर शो करते हो, दैट इज़ मैग्नानिमस पर्सन. The team's manager was magnanimous in victory and praised the losing team. So you must be magnanimous even though you are winning something, you have won something, but don't be cruel on that situation. Be magnanimous. Be a magnanimous and become a benevolent person at that moment. So I hope these vocabulary would be worthful to you. I'm gonna come with lots of work and vocabulary. But before that, what you have to do, you have to prepare a number of examples with these vocabulary to retain in your daily life. And don't forget to like, subscribe and share my channel.